Assalamualaikum, good evening. Welcome to Chat with Khwaish, your wish, sponsored by No the Destiny of Hope. Today's episode is again an exciting episode because we have one of the amazing personality from India. He is a rising star and he is going to shine like a star with his music and with his own composing. And now from this you can understand music is a particular profession where people love to get involved so soon because they think the music has their own world to interact. It's not a harm that you are into a music because it's part of your wish, your wish, and it's your life and you know how things can be better. But this personality, as he's focusing on his music, he's not away from his religion. He's so much inspiring. He is going to connect with us from India live, and I'm so excited to chat with him because he said that whatever your wishes is, just go ahead. And he also says that his family is really supportive. So stay tuned with us, and we will be now connecting to him from India only on Chat with Khwaisha, which sponsored by Noor, the Destiny of Hope. Thank you so much, Arkev, to accept our invitation to our show, Chat with Khwaish, Your Wish, sponsored by Noor, the Destiny of Hope. How are you doing today? Thanks for this song actually, and मैं actually बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस चीज़ के लिए आपसे फर्स्ट मर्तबा मेरी ये बात हो रही है and I was so excited. मैं कुछ वक्त से इस चीज़ के लिए सोच भी रहा था कि कभी एक वक्त आए कि जिस वक्त मैं आपसे बात कर सकूं और कुछ अपनी बातें दुनिया के सामने रख सकूं. Yeah, so I'm so happy. Yeah. Yeah, that's a part of life, and thanks to the platform concept which we made, that to connect people, personality, and like innovation people like you, which can connect with the youth. So as you're aware, our episode will be always on air every week. That's on Friday from 5:30 to 6:30 on YouTube on Know the Destiny of Hope. And I hope you inspire lots of people, and I hope the surprise which we prepared, that would be much more of it. So are you excited? Yeah, so excited. So excited. So let's move to our segment number 1, that is connecting yourself. In this segment, आपको आपके बारे में हमें बताना है, आपका नाम, आप कहाँ से हो, आपका प्रोफेशन क्या है, आप क्या करती हैं, and how is your family relation with you, how is the circle with you, and everything, so on. Yeah, sure. So my name is Arkeeb Faz, and I've been playing, I've been in music since 2009. It's been like 14 years almost. Wow. I guess, yeah. And अभी कितना वक्त लगा मुझे यहाँ तक आने के लिए कि मैं बता नहीं सकता आपको actually. So एक कुछ वाकया था मैं आपके साथ शेयर करूंगा जैसे अपनी बातें अभी बढ़ेंगी. म्यूजिक को लेके मेरी जिंदगी में सबसे ज्यादा कुछ चीजें रही हैं कि हाँ मैं इसके लिए हमेशा से उतावला रहा हूँ कि हाँ ठीक है कुछ अगर चाहिए जिंदगी में तो म्यूजिक है, इसके बिना कुछ नहीं है. और दूसरी चीज एक इबादत. मैं खुदा से बहुत ज्यादा कनेक्टेड हूँ. सब कुछ नहीं चाहिए तो बस खुदा ही चाहिए. बस दूसरी चीज मेरे लिए ये है. पहले खुदा एक्चुअली, दूसरी म्यूजिक है. Amazing. So yes. So how about your relation with your family? अम्मी अब्बू के साथ, घर वालों के साथ, how is your relation? अल्हम्दुलिल्लाह सब बहुत मुझे झेलते हैं एक्चुअली. लाइक मेरे एक्चुअली घर में ज्यादातर जो बड़े हैं, मैं सबसे ज्यादा छोटा हूँ. आई एम द यंगेस्ट वन. सो सब मेडिकल लाइन और इन सब चीजें से मैं थोड़ा सा अलग, मेरी एक दीवानगी रही है म्यूजिक को लेके और मैं हमेशा कुछ अलग चलाऊं और चीजों को लेके मैं कभी समझा नहीं कि हाँ ठीक है मेरे लिए ये जरूरी है वो जरूरी है. मैं हमेशा एक चीज लेके चलाऊं कि मुझे जो करना है वो करना है. एंड मेरी फैमिली में हमेशा लोगों का यही रहा है कि हाँ ठीक है आपके सपने हैं वो पहले वो करें. कुछ हालांकि कुछ मुसीबतें आई थी शुरुआत में, लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है. जब मैं करने लगा हूँ, कुछ चीजें दिखाने लगा हूँ, प्रूव करने में काफी वक्त लगा मुझे, बट स्टिल आई एम नॉट डन. आई हैव टू डू वेरी वेरी much. Yeah. It happens.
हर चीज स्टार्ट करने से challenges होता है. That's what more our segment is Yes. all about. Because things are not easy. लोग कहते हैं हाँ achievement Yeah. पाना, shortcut लेना, it's okay. But shortcut कभी भी long term नहीं बन सकता. Short term का जो success है, it remains as a short term. But we hope for you the best, and inshallah things will get better soon. So it comes to your profession as being musician. So how do you got inspired? Like, आप किससे inspired हुए being a musician, आपके music में आना and singing करना? How? Yeah. ये एक्चुअली एक मेरी एक कहानी अगर मैं बताऊं आपको, बहुत पुरानी एक वाकया है. सो मैं वहीं से शुरू करता हूँ. एक वक्त था जब मुझे म्यूजिक से आई यूज्ड टू डांस अ लॉट. पहले मैं बहुत ज्यादा डांसिंग में मेरा शौक था, बट एक वक्त आया कि मुझे फिर ये हुआ कि म्यूजिक को सुनते सुनते मेरे को एक वाइब्स मेरी एकदम से पूरी एक होता है ना कि आपको फील होता है कुछ है वहां पे. मैं आपको कुछ एक छोटी सी चीज बताता हूँ. मैं बहुत छोटा था. मैं एक चीज क्या करता था कि मैं अपनी जो छत है उस पे जाके उसकी वॉल पे उस पे खड़ा होके ईयरफोन्स लगा के, और जब हवा चल रही होती थी मैं ऐसे हाथ पे खोल खोल के अपने दोनों हाथों को और खड़ा हो जाता था. और कुछ कुछ चीज थी, कुछ ऐसी हवाएं या मौसम या नेचर, कुछ भी कह सकते हैं आप, जो मुझसे कुछ ना कुछ कनेक्ट कर पाती थी और मैं उनसे कनेक्ट हो पाता था. तो वही चीज चलती रही. एक बारी क्या हुआ कि अब मैं कुछ असल अपनी बात बताता हूँ कि मैं कैसे क्या हुआ, कैसे म्यूजिक में आया. मेरे जो बड़े भाई हैं, ठीक है, हम अल्हम्दुलिल्लाह 5 भाई हैं. सो 5 Wow. भाई और 2 बहनें हैं. यस. सो And you're the youngest one, and आपको ज़्यादा yeah, I'm the pampering, youngest one. supportive. Yeah. Oh, good to know. yes. Yes. So उन्हें कॉलेज टाइम पे अपना एक गिटार का शौक लगा था, ठीक है, और वो अपना इंस्टीट्यूट के वहीं पे अपना गिटार रखा करते थे. और मुझे थोड़ा सा ये होता था कि मैं जाके बस देखता था उस गिटार को ना, ऐसी कि हाँ ठीक है, अच्छा वो गिटार है, अच्छा वो गिटार है. सो एक मैं क्या होता था, चुपके से अपनी अम्मी से चाबी लिया करता था कि अम्मी मुझे, जिस टाइम पे वो कॉलेज जाते थे उस टाइम मैं चुपके से उनका गिटार लेता था, जाके उसको प्ले करता था टंग टंग कुछ हल्का हल्का से कुछ कुछ ट्यून्स, ताकि बस एक कनेक्ट हो सकूं उससे मैं. राइट. सो एक दो मरतबा ऐसा चला कि हाँ मैंने कुछ दिन ऐसे किया. एक बार ऐसा हुआ कि भाई आ गए और उन्होंने मुझे पकड़ लिया, और उन्होंने उसके बाद फिर मुझे कुछ चीजें कही थी और काफी डांट भी लगाई थी, क्योंकि पता नहीं क्या क्या बात थी क्या नहीं थी, बट इट वाज लाइक मतलब बहुत ज्यादा कि ठीक है ये सब चीजें ऐसे नहीं, अभी पढ़ाई पे ध्यान लगाओ, ठीक है. तो बस उस तरीके से हुआ. उसके 6 मंथ्स के बाद, मतलब उस टाइम पे मेरे अंदर जुनून आया था कि मुझे अब यही करना है. उस टाइम तक मेरे अंदर कनेक्शन आ गया था म्यूजिक को लेके ना. तो बस फिर उसके बाद ये हुआ कि ठीक है मुझे यही करना है. तो उसके 6-7 महीने के बाद भाई का बर्थडे 25 दिसंबर में आता है. उसकी रात को मैंने भाई को, उस बीच मैंने ना प्रैक्टिस की 6-7 महीने में, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की मैंने. और फिर मैंने भाई को उनके बर्थडे पर अपनी खुद की कंपोजिशन सुनाई. Amazing. और उसकी कंपोजिशन ऑन गिटार. और ही वाज सो सरप्राइज्ड. एंड उन्होंने मुझसे बड़े वाले भाई से कहा कि ये की लो और ये अर्कीब को लाके दे दो गिटार, ही डिजर्व्स इट. मैंने उस टाइम मेरी आंखें भर गई थी. मैंने वाह, दैट वाज एक्चुअली माय फर्स्ट अचीवमेंट. Amazing. That's great to know. क्योंकि कहते हैं ना, अगर encouragement घर वालों से ना मिले, तो that is the biggest disappointment in life. I always say in all the episodes. Yes. Family को that support your children as much as you can, because they are only the hope. Yeah. Only them. There's nobody else, because once they get a support, घर से ही support मिलेंगे, तो ही आपको बाहर से connection ज्यादा strong मिलेगा. चाहे बाहर support करे या ना करे. You know you have a power to fight with them, to face them, which is most. I hope, because you don't know. This show to become on the air, it just got a click. Ek idea, ye platform bana. Anything can happen in life. An idea can change your entire life. With that thought, अगर आपको मौका मिला कि आप entertainment business पे जाकर आपका
गाने का हुनर दिखाया, like music composing, for example, like हम्म, Bollywood and all that kind of stuff. So are you prepared to go and to grab that opportunity if you get a chance? मौका मिला तो? yeah, yeah, definitely would love to do that. I'm actually eagerly waiting for that opportunity because मैं एक्चुअली उसी लम्हे का इंतजार कर रहा हूँ जब मुझे उस तरह से सारी चीजें मिलें कि हाँ ठीक है, आई हैव दीज काइंड ऑफ म्यूजिशियंस हु आर बेस्ट एंड इन देयर फील्ड विद देयर इंस्ट्रूमेंट्स, राइट। जिस दिन मुझे वो मौका मिला उस दिन मैं कुछ और एक अंदाज में कुछ चीजें कहना चाहता हूँ। बिलीव मी, आई एम नॉट लाइंग, आई एम नॉट ट्राइंग टू बी स्मार्ट और ये सब चीजें कि टू गेट अपॉर्चुनिटी और लाइक दैट। आई एक्चुअली वांट टू डू, मुझे उसके बाद कुछ नहीं दिखना, मुझे जस्ट म्यूजिक, दैट्स इट। Inshallah, things will get better. As I always say, we never know. We can be a part for a या part through, but we don't know. आगे क्या होगा? We never know या anything. So that's why I या always say या Prophet Allah for everything because he is the best planner and he knows what will happen. When it comes to the या performance या of your singing and your music, which which performance or which composing was your best, one of the best ones? कौन सा सबसे बढ़िया the था? next one actually. The next one. Okay. Yeah. So 5 साल के बाद आप अपने आप को कहाँ देखते हो? इसी कैरियर में आप आगे बढ़ना चाहते हो या you want to change your profession? Like Hmm. how is it? आप क्या करना चाहते हो 5 साल के अंदर? What's your scope? 5 साल में where do I see myself, like ये बात है। Yeah. Okay. Honestly, on the stage with long hair and I am actually composing for uh, for bands, for Bollywood, for for music industry. Now, like for music, how passionate you are? I'm actually very passionate about music, believe me, क्योंकि मुझे लोग थक गए हैं, बिलीव मी। कोई वक्त था कि मुझे लोग थक चुके हैं कि हाँ आपको बेटा ये करना नहीं चाहिए। कुछ लोग आते हैं जिंदगी में आपको जो रोकते हैं, कहते हैं कि भाई नहीं मत करो, मत करो, ये सब चीज करो, 10 चीजें हैं। एंड मुझे तो ज्यादा हुआ किसी वक्त लोगों ने कुछ वक्त मुझे रोका भी, कहा भी कि भाई भाई आपके ऐसे हैं जो कि सब अपना बढ़िया कर रहे हैं, किसी वक्त ऐसा ना हो कि तुम उनसे कम रह जाओ, या कुछ ऐसी बातें आती है जो कहते हैं लोग, क्योंकि ऑब्वियसली लोगों का काम है कहना। बट मेरा हमेशा ये रहा है कि आई नो माई फैमिली, आई नो अबाउट माई फैमिली कि दे लव मी एंड दे आर ऑलवेज सपोर्टिव। कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी चीज के लिए मुझे डांट या कुछ भी ऐसा करा, हमेशा बहुत मोहब्बत से, क्योंकि मैं हमेशा लगा रहता था, आज भी लगा रहता हूँ। 7 से 8 घंटे मैं सुबह उठ के उसके बाद फिर गिटार लेके बैठता हूँ, कब शाम हो जाती है मुझे अंदाजा नहीं लगता। बस कुछ वक्त होते हैं जिस वक्त मैं रुकता हूँ, अजान का मुझे टाइमिंग और मतलब खुद से एक होता है कि अजान होने वाली, दैट इज द ओनली टाइम जब मैं थोड़ा सा ब्रेक लेता हूँ। अदरवाइज वैसे नहीं, फिर मगरिब हो जाती है, उसके बाद फिर मैं गिटार को थोड़ा देर रखता हूँ, फिर कुछ बाहर घूम के आता हूँ। बट हाँ, लोग अब जाके मुझे थोड़ा सा पहचानना और एक्सेप्ट करना शुरू किया है। इवन अब कुछ ज्यादा मोहब्बत करने वाले लोग भी मिल रहे हैं। Mashallah, that's good to know. Really glad. हर एक प्रोफेशन, हर एक Yeah. फैमिली में, स्पेशली इन एशियन आई कुड सी, वो लोग कहते हैं कि ये मेरा एक रेगुलर क्वेश्चन होता है कि हमें जी डॉक्टर बनना है, हमें इंजीनियर बनना है, हमें फलाना बनना है, हमें पायलट बनना है। तो आप जी जब कहा कि आपको म्यूजिशियन, आपको म्यूजिक इंडस्ट्री में जाना है, तो आपके घर वाले सपोर्ट किए थे या अगेंस्ट थे, या कुछ वाकया हुआ like about connecting to the music? yeah, it actually happened. शुरुआती दिनों में ये था कि शौक शौक रखो इसे, बट कुछ चीजें करो ऐसी जिससे एक वो भी अपनी पहचान जगह बने। ठीक है कि हाँ ठीक है, यस, अपनी एक पहचान बने कि हाँ तुम, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग ये चीज देखते हैं कि हाँ ठीक है, क्योंकि आर्ट को लेके बहुत कम होता है जो लोग कुछ समझ पाते हैं। मेरी फैमिली में समझते हैं, बट 2 घर छोड़ के शायद कोई इंसान ना समझे, ऐसा भी होता है। Yeah, true.
सो वही चीज है, मुझे शुरुआती दिनों में बहुत ज्यादा रोका गया या टोका गया कि ज्यादा नहीं बेटा, करो कोई परेशानी नहीं। लेकिन जैसे वक्त चलता गया, जब उन्हें मेरा थोड़ा सा जुनून देखा, मैं बिल्कुल इस चीज के लिए अगेन, मतलब कुछ भी कभी कुछ नहीं चाहिए मुझे, कोई मेरी कोई कभी कोई फरमाइश नहीं रही कोई कि हाँ ठीक है मुझे ये चाहिए या वो चाहिए ऐसा चाहिए, बस कुछ भी नहीं। मेरा सिंपल कि मुझे बस एक रूम में रहने दो, सिर्फ एक चीज, मुझे एक रूम में रहने दो, मुझे अकेले रहने दो, या ताकि मैं प्रैक्टिस कर सकूं। फॉर यू बेटर। इसी के साथ अगर किसी को इस म्यूजिक इंडस्ट्री में आना है, द यंग जनरेशन, तो आपका एडवाइस उनको क्या होगा? व्हाट विल बी एडवाइस? आप उनको क्या नसीहत? नसीहत यही कि कोई कितना ही रोके, कोई कितना ही रोके, आपका दिल जो कह रहा है ना, मैं इवन नॉट जस्ट फॉर म्यूजिशियंस, मतलब मैं हर इंसान से ही कहना चाहता हूँ, अगर स्पेशली म्यूजिशियंस से कहूँ तो ये चीज है कि कितना ही कोई रोके, कितना ही कोई कुछ बोल ले कि नहीं करना, या बात नहीं है तुझमें वो, या कुछ भी ऐसे कि हाँ मुझे फील नहीं आती है, चार लोग आपको तारीफ भी करते हैं फिर उसके बाद पीछे से बुराई भी करें, या कुछ भी है, अगर आपको अंदर से फील आ रहा है कि मुझे करना है, जस्ट डू इट। और सबसे बड़ी चीज है प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप उतना अपने आप को निचोड़ पाएंगे और ठीक कर पाएंगे आप अपने आप को। कहते हैं कि हीरा तराशना, वो सारी चीजें वो प्रैक्टिस से ही होगा। किसी की ना सुने, बिलीव मी, किसी की भी नहीं सुननी, सिर्फ अपनी सुननी और दिल की सुननी है, और परफेक्टली सिर्फ सेड। खुदा को मानना है, दैट्स इट। एग्जैक्टली, नो, सबको यही लगता है कि हम लोगों से जाएंगे तो लोगों से मांगेंगे तो लोगों से मिलेगा, पर ये लोग भूल या जाते हैं कि वो लोगों को अल्लाह ताला ने बनाया। सो बेशक, you have to ask him, then only you can ask a way, he will do his work. And he, यस as I यस, always say, he's the best planner. उनका जो प्लानिंग है हमसे 10 एक्सट्रीम गुना ज्यादा बेहतर। इंडीड, So yeah, नो with डाउट। that note, अगर आप म्यूजिक की बात करें तो इट्स नॉट दैट हाँ आपने डायरेक्टली परफेक्शनिस्ट हो गया, आपको कुछ मिस्टेक्स हुए होंगे इन द इनिशियल। तो आपका क्या क्या मिस्टेक्स रहा म्यूजिक में जो आपने इम्प्रूव किया एंड देन यू गेट बेटर एंड बेटर एंड बेटर? ओके, मिस्टेक्स आज भी होती हैं, हमेशा हो तो उसके लिए तो सुधार के लिए खैर लगे ही रहते हैं, जब तक मिस्टेक्स ना हो तो क्या ही है। बहरहाल बट मैं शुरुआती दिनों में ज्यादा प्रैक्टिस नहीं किया करता था। वो वजह वही थी कि मैं मनाने में या जुटाने में या फिर और चीजों में लगा रहता था। मैं सोचने में ज्यादा वो रहता था कि हाँ ठीक है, कब क्या है, कैसे होगा, क्या पता कल ये माने ना माने, घर वाले नहीं माने या बाहर वाले ना माने, क्या पता मुझे पसंद करेंगे नहीं। मेरी सबसे बड़ी परेशानी ये रही है कि मैं बहुत सोचता रहा हूँ कि होगा नहीं होगा, सबसे बड़ी परेशानी। और जब मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे परवाह ही नहीं, अब कोई सोचे सुने मुझे ना सुने, मुझे कल का नहीं पता, क्या पता कल मैं हूं या ना हूं, क्या है क्या नहीं है कुछ नहीं पता। मैंने सोच लिया कि मुझे आखिर वक्त में जब मैं इस दुनिया से जाऊं तब मुझे अफसोस ना हो कि मैंने नहीं किया जो मुझे करना था। बिलीव मी, मैंने कई बार अपने आप को सोचा है कि मतलब कहना नहीं चाहिए बट मैंने अपने आप को देखा है कि मैं अगर कब्र में हूं तो मुझे कैसा लग रहा है, कैसा महसूस होगा, क्या चीजें मैं सोचूंगा कि क्या छूट गया पीछे। मैंने बुजुर्गों की बातें सुनी है, बड़ों की बातें सुनी है, यूट्यूब पर आप जैसे काफी अच्छे लोगों की मैंने बातें सुनी है, जो सीखने को मिली है कि हाँ दुनिया को छोड़ें आप, बिल्कुल छोड़ें आप, मतलब कि किसी की ना सुने आप, बिल्कुल भी नहीं, बस अपने दिल की करें, और गलतियां होती रहेंगी पर आपको चलते रहना है। यस, You know, Akif, really, I got या goosebumps what you have said now. It is really true. हम लोग ना इतना नहीं सोचते हैं. And I would say an advice to everyone, life is very important. जिंदगी में बहुत या अजीज चीज है, बिकॉज ये जिंदगी हम इतना रहमत इतना बरकत से दिया हुआ, वी शुड वैल्यू इट एंड वी यस ऑलवेज सपोर्ट एवरीवन। एंड यस इफ यू थिंक सो मच, just go for the prayer. That will या, definitely help you out. This is what I would say. आई नो, आई नो With that note, Kim, I would like to know that
व्हाट्स योर स्ट्रेंथ एंड व्हाट्स योर वीकनेस? हर इंसान का एक कमजोरी होता है और एक स्ट्रेंथ भी होता है, तो आपका कमजोरी क्या है, आपका स्ट्रेंथ क्या है? मेरी स्ट्रेंथ असल में दो दो ही अल्फाजों में कहूंगा, मैं खत्म करूंगा इस बात को। मेरी कमजोरी अ, अगर है तो वो यही है कि अगर मैं खुदा से नहीं जुड़ा हुआ, अगर मैं किसी वजह से ऊपर वाले से नहीं बात कर पा रहा, या कुछ ऐसा कुछ चीजें नहीं हो पा रही, अगर मैं प्रे नहीं कर पा रहा या कुछ नहीं कर पा रहा, तो वो मेरी सबसे बड़ी कम और मेरी ताकत सबसे बड़ी इबादत है। बिलीव मी, खुदा से जुड़ना, नमाज, दुआएं। बिलीव मी, आई डोंट लुक लाइक दैट कि मैं कुछ वैसी चीजें, मैंने इवन अपने हाथ में टैटूज करवा रखे हैं और ये सब चीजें। कुछ लोगों ने मुझसे कहा भी कि ये काफी चीजें होती हैं कि कुछ लोग मानता हूँ कि कुछ चीजें हैं जिंदगी में, लेकिन धीरे धीरे चीजें समझ में आती हैं, जो बचपना है या जो भी है। या सो व्हाट अबाउट योर तो मेरी स्ट्रेंथ? स्ट्रेंथ आपका पावर स्ट्रेंथ क्या है? मेरी स्ट्रेंथ इबादत है। मुझे वहां से ताकत Okay, मिलती है। amazing. Yeah, बिलीव that's मी, what I was saying. आई एम नॉट लाइंग। हर हर प्रेयर में उम्मीद, पॉजिटिविटी और पॉजिटिविटी होता है, इसीलिए that's our main motto of this show is we are trying to end the negativity, especially when it comes from चारों तरफ से, and I hope our inshallah that's our prayer and wishes आपको सक्सेस मिले एंड आपका जो भी तमन्ना है इंशाल्लाह म्यूजिक के अलावा you get it inshallah, and life is very important and I hope everything gets well. So with that note, Arkib, we are ending our segment number 1, that is connecting yourself. And with this note, I would say that we have seen how Mr. Arkib is an amazing musician. Now we will go to our segment number 2, that is connecting people. Let's see how Arkib connects to his circle. And there's something amazing we have prepared for him, and I hope he loves it. Stay tuned with us. We're in conversation with Arkib from India, from New Delhi, and he is just a rising star as of now. And we hope he becomes a superstar soon. Welcome back after a short break. We are in conversation with Arkib from India, New Delhi, and he is one of the musicians today we have on our platform. And let's see how he connects our segment number 2, which is connecting people. So, Mr. Arkib, in this segment, I want to know how do you connect to your people, especially your family, अपने माँ बाप के साथ, घर वालों के साथ, दोस्तों के साथ, कितना easily connected हो आप? हूँ बहुत ज्यादा कनेक्टेड, बट यही है कि मैं अपनी कुछ चीजें, मेरा ये रहता है कि मैं अपने जो सच है, मैं अपनी बातें ज्यादातर कह नहीं पाता। और या बिकॉज कभी कभी लगता है मुझे कि हाँ ठीक है, मुझे एक वक्त आएगा जब मैं अपनी बातें कहूंगा, जब एक वक्त आएगा जब मैं अपने हर एक चीज बता पाऊंगा। बट हाँ ठीक है, जब कुछ ज्यादा चीजें अगर भर जाती हैं, जो चीजें, उस हिसाब से फिर मैं बात करता हूँ हमेशा। मेरे घर वाले बहुत बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हर चीज को लेके सपोर्टिव है। भाई बहन, मम्मी पापा सब बहुत बहुत मोहब्बत करते हैं मुझसे। छोटा हूँ और इस चीज का मैं पूरा फायदा उठाता हूँ, जो कि सच है। बहुत परेशान किया मैंने घर वालों को, बिलीव मी, बहुत परेशान किया, और आज भी करता हूँ, जो कि मैं मानता हूँ। अल्लाह से हमेशा तौबा करता हूँ मैं इस चीज की, और घर वालों से अभी माफी ठीक से नहीं मांग पाता, क्योंकि थोड़ा सा ये रहता है कि ठीक है, मैं जरूर वो चीज दिखाना चाहता हूँ करके कि या ओके, तो विद दैट नोट, अगर आपका ये एपिसोड आपको कोई क्लोज करीबी देखेगा, तो वो कौन, लाइक टू whom you are missing so much कि आप उनको कुछ कहना चाहते हो through is this episode, तो वो कौन होगा और आप उनको क्या कहना चाहते माय फैमिली। ओके, तो आप उनको कुछ कहना चाहते हो? बड़े सबको कहना चाहता हूँ कि ये कि इंशाल्लाह बहुत जल्द जिंदगी में बहुत कुछ होगा, और एक एतबार, एक भरोसा,
जो बना रखा है आज तक मेरे लिए वो हमेशा बना के रखें। वो इंशाल्लाह वो चीज आएगी, एक वक्त आएगा कि सबको खुशी होगी इस चीज की कि हाँ ठीक है, इसे छोड़ा उस तरीके से कि हाँ करो अपने दिल की। पर मैं उस चीज के ऑब्वियसली नाजायज फायदा तो नहीं उठाता हूँ कि हाँ कुछ और ये वो मैंने हमेशा इस चीज के लिए रखा है कि ठीक है। बट मैं अपने माँ बाप से, मम्मी पापा से यही कहना चाहता हूँ कि मुझ पे जो एतबार किया है, जो इतने मोहब्बत हमेशा बनाए रखी है मुझ पे, जो एतबार करते हैं, इंशाल्लाह एक दिन मैं जरूर वो चीज कर पाऊंगा कि आप सबको दिल से खुशी हो। इंशाल्लाह वी होप फॉर दैट। सो अगर ऐसा कुछ बातें हैं जो आपकी लाइक आपके अम्मी अबू की जो अभी भी आप फॉलो करते हो अपने लाइफ में एंड देन यू स्टिल इम्प्लीमेंट, तो वो क्या बातें हैं जो अभी भी आप अमल करते पापा की एक बहुत सालों पहले मुझसे एक पापा ने एक बात कही थी, जब मैं एक्चुअली म्यूजिक में ही आ रहा था। मतलब मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं पापा, मतलब उस दिन मेरे अंदर गट्स आ गए थे कि मैं पापा सच कह देता हूँ, पापा मुझे इसी में कुछ करना है, मैं यही करना चाहता हूँ। सो उस वक्त पापा ने मुझसे एक बात कही थी कि डिसाइड कर लिया है, तो पापा ने एक लाइन कही थी कि बेटा, नेक नियत मंजिल आसान, हमेशा ध्यान रखना, अपनी नेक नियत रखना तो मंजिल इंशाल्लाह आसान होगी। तो वही चीज लेके मैं अपने पापा की मानता हूँ कि हाँ ठीक है, जो मुझे सिखाई थी वही चीज लेके मैं हमेशा चलता हूँ। और यस, और अम्मी की रही बात, तो अम्मी बहुत स्वीट है मेरी, बहुत स्वीट है, और हमेशा से बहुत ज्यादा स्वीट रही है वो। और उनकी वही बातें कि ख्याल रखना, जिस तरह से पूछना हमेशा, और वही सब चीजें हैं। मुझे कुछ चीजें एक्चुअली हो जाती है कि हाँ ठीक है, मैं थोड़ा आवारा या ये सब चीजें की हैं किसी टाइम पे, अम्मी को बहुत परेशान किया मैंने एक्चुअली। अम्मी हैं? ऑलवेज लाइक कि सपोर्टिव रही है मुझे लेके। या वहाँ का जो रिलेशन है ना वो कोई डेफिनेशन नहीं हो सकता। या इन दैट नोट, अगर आपके लाइक यू नो इट्स नॉट दैट कि हाँ आपको सब प्यार करते हैं या पॉजिटिव करते हैं बातें कहते हैं, कभी कभार कुछ लोग नेगेटिव बोलते हैं कि हाँ बहुत कुछ कहते हैं लोग आसपास के लोग, तो हम यस। वो सारा नेगेटिविटी आप कैसे हैंडल करते हो, लाइक हाउ यू लेट इट गो, कैसे आप हैंडल करते हो? अभी हाल फिलहाल की मैं कुछ आपको कुछ चीजें बताता हूँ कि वैसे तो आसपास मेरे वैसे नहीं कहते, अभी सोशल पे जैसे मैं अपलोड करता हूँ कुछ चीजें, आई हैव सीन, मतलब कुछ लोग हैं बहुत ज्यादा प्यार करते हैं मुझसे, लेकिन एक आध तो निकल के आता ही है जो आपसे ज्यादा प्यार कर बैठता है, यू नो। ज्यादा पसंद कर लेता है। सो वो उस तरीके में जब भी मेरे पास आता तो मैं इग्नोर नहीं करता, बिलीव मी, मुझे इग्नोर करना जरूरी नहीं समझता, क्योंकि ये मेरा काम है, ये मेरी मोहब्बत है, इसको कोई पसंद नहीं कर रहा है मैं उसको बहुत प्यार से समझाता हूँ। कई बार मेरे किस्से ऐसे हुए हैं असल में कि अगर किसी को मुझसे कोई दिक्कत भी है, कोई परेशान भी है कि हाँ ठीक है, ठीक नहीं है, कोई परेशानी किसी के दिल में हो तो मैं उससे पूछ भी बैठता हूँ कि क्या परेशानी है, कोई ऐसी अगर कोई बात है तो मुझे बताएं, मैं उस चीज को ठीक करूंगा, मैं कह देता हूँ। और रही बात इस चीज की, क्या हेटर्स या कुछ भी अगर ऐसे लोग आते हैं जो कि नहीं मुझे पसंद करते हैं, जो भी, उन सब चीजों को मैं उसी तरीके से बहुत मोहब्बत से कि ठीक है, मैं आंसर कर देता हूँ। आप अगर पढ़ेंगे भी कभी मेरे कमेंट्स तो मैं इन सबको बहुत इज्जत से और बहुत प्यार से मैं आंसर करता हूँ। अगर किसी का कुछ आता है कि यू शुड, तुझे गाना नहीं चाहिए या फिर ऐसे करके, तो मैं बहुत अच्छे से, मैं अच्छा ठीक है, मैं ऐसे करके रिप्लाई करता हूँ, दैट्स इट। Wow, या that's good. You know, कहते हैं प्यार से ही सब कुछ हैंडल कर लो। Really, it's amazing to know that. मिस्टर आरके, हमने आपके लिए कुछ सरप्राइज प्लानिंग किया है इस सेगमेंट टू, जो हमारे शो के हाईलाइट हैं। I will ask the team to ओके। play for you. Kindly please play that, and then let's see the surprise. Hi, I'm Nawazish. I'm Arkeb's elder brother and I'm from New Delhi, India. बहुत सारी यादें हैं अरकीब के साथ क्योंकि मैंने उसे बड़े होते हुए देखा है। बस इतना बता सकता हूँ कि उसने बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स अपनी ज़िंदगी में देखे हैं और हमेशा उसने सिचुएशंस को मैनेज किया है, अपने इमोशंस को कंट्रोल किया है। और शायद यही वजह है कि उसके अंदर मुझे लगता है बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो उसने अपने अंदर दबा रखी हैं, जो बाहर आनी है, बट वो ज़रिया नहीं ढूंढ पाता उनको सही तरीके से आगे रखने का। और शायद उसे ऐसा लगता है कि
म्यूज़िक एक ऐसा मीडियम होगा जिसके थ्रू वो अपनी बात दूसरों तक सही तरीके से रख पाएगा। वो 13-14 साल का था, तब से उसे ये चीज़ समझ में आ गई थी कि म्यूज़िक की क्या पावर है, और तब से वो लगा है माशाल्लाह। हमेशा उसने मेहनत की है, हमेशा उसने कोशिश की है, हमेशा उसने बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। तो बस यही कहूँगा कि जो हमेशा कहता हूँ मैं अरकीब को, कि लोगों का वक्त आता है, तेरा दौर आएगा, और इंशाल्लाह यकीन रख ज़रूर आएगा। विश यू ऑल द बेस्ट अरकीब। Hello, this is Aisha, and Arkib is my younger brother, as in like my husband's younger brother, but he's my younger brother as well. He is such a talented person. He has such depth in his voice, and it's like very soothing when you hear him out. And such a talented person. I have been waiting for long to jam with him, and one day definitely we will. But yes, I do wish him lots and lots of luck, lots and lots of good wishes are with him. हमारी दुआएं हैं उनके साथ, and inshallah one day he will make it big. And I would like to say patience is the key to success, and he has a lot of it. So definitely, inshallah, very soon we'll see him flying with flying colors. All the best, Arkib. हाय आई एम निकी फ्रॉम दिल्ली। मेरी बेस्ट फ्रेंड के बहुत ही ख़ास बहुत ही करीबी हैं अरकेब। अरकेब एक ऐसे शख्स हैं जो सामने वाले की आंखें पढ़कर बता देते हैं कि वो किसी तकलीफ़ में हैं, और पर्सनली जाके उनसे बात करते हैं कि आप मेरे से शेयर कर सकते हो अगर करना चाहते हो, और इस मामले में अगर मैं किसी भी तरीके से आपकी कोई भी काम आ सकता हूँ तो मुझे बहुत खुशी होगी। और यही बात अरकीब भाई की मुझे बहुत पसंद है। वो बहुत ही सपोर्टिव हैं, बहुत ही अच्छा गाइड करते हैं, हमेशा सबके साथ खड़े रहते हैं। एंड काफ़ी सारी यादें हैं अरकीब भाई के साथ। किसी भी महफ़िल में अगर वो अपनी गिटार को लेके एंट्री कर लें, उसके बाद तो वो महफ़िल की शान है। सारे दोस्तों की जान तो वो हैं ही। बहुत टाइम हमने एक साथ स्पेंड किया है, काफ़ी सारे ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर एक साथ किए हैं। अरकीब भाई को हॉरर मूवीज़ बहुत पसंद है, हमने बहुत सारी हॉरर मूवीज़ एक साथ देखी हैं। अरकीब भाई पतंग बहुत अच्छी उड़ाते हैं। बहुत खुशी हो रही है उनको आज इस मुकाम पर देख के। अल्लाह ताला उनको और अच्छे मुकाम हासिल करवाएं, वो अपने मुल्क का, अपने फैमिली का बहुत नाम रोशन करें, अपने सारे दोस्तों को ऐसे ही प्राउड फील करवाते रहें। लव यू सो मच ब्रदर, लव यू सो मच। लास्ट में एक बात कहना चाहेंगे जो सिर्फ अरकेब भाई ही समझ सकते हैं। छिप्पा, चाय पियोगे? बर्थडे है मेरा आज। Hi, this is Shibu from Delhi, and I am Arkib's best friend. And it's been a year I've known this guy, and he's very special to me. So, the best part about him is that he's very much enthusiastic about his music. He cannot survive without his music. He needs his music to come out to give to the people. And the best part about him, which I feel, is that he can actually connect with the people's emotion with his words, with his thoughts, with his the way he sing his words. I mean, that is killing. I can share an incident with you. So once there was some friends, we were having a gig together, and there was a situation when he was singing, and while singing he started crying, and people around him were like, bhai, stop, अब नहीं सुन सकते, please stop, I cannot listen you anymore, because it was too much for them, and it was too much for us to digest the emotions which he throw out of his music, which is superb, amazing. I just want to see him on the big stage singing out and giving his emotions to the people giving him love back, and really wishing him to be the biggest superstar, the coming superstar of Gen Z. And all the best, Arke. Looking forward for your bright future. Lots of love from your friends and family. Take care, Arke. And I was seeing you against lots of emotions. How is that? स्पीचलेस, एक्चुअली स्पीचलेस। मतलब ये मैंने कभी नहीं सोचा था मुझे इस तरह से लोग
इस गहराई से मुझे लोग एक्चुअली जानते हैं। मैं बहुत छुपा के रखा है मैंने अपने आप को, बिलीव में, बहुत छुपा के। पर मुझे लोग इस तरह से जानते हैं और इस तरह से महसूस करते हैं, प्यार करते हैं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ खुदा का, बहुत शुक्रगुजार हूँ खुदा का। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू So आप वेरी उनको मच। आप उन सबको कुछ कहना चाहती हो? जी आप उनको कुछ कहना चाहते हैं सबको? हाँ, मैं सबसे ही कहना चाहूंगा कि थैंक यू वेरी मच गाइस, मुझ पे एतबार करने के लिए और इस तरह से मुझसे प्यार करने के लिए। मैं यकीनन कभी हार नहीं मानूंगा, कभी नहीं रुकूंगा, जो कि हमेशा हर इंसान मुझसे कहता आया और आप सबने कहा है। मैं आउट फील कराऊंगा एक दिन। थैंक यू सो Inshallah, मच। we hope for the best, and I hope lots of loves to come on your part, and all the negativity goes very fast. And इसी के साथ एक फरमाइश है आपकी सर्कल से that you play a good guitar with your song. So I would love if you could play a guitar for them and your close any song which you love for them, dedicated to them. Yes. ये है मेरी कहानी, खामोश जिंदगानी, सन्नाटा कह रहा है, क्यों तुम सह रहा है। एक दास्तां पुरानी, तन्हाई के जुबानी, हर जख्म खिल रहा है, कुछ मुझसे कह रहा है। चुभते कांटे यादों के दामन से चुनता हूँ, गिरती दीवारों के आंचल में जिंदा हूँ। बजाए प्यार की शबनम के बरसते रहते हैं हर दिन मौत के साए, स्याहियों से उलझ पड़ती है मेरी आंखें। है कोई नहीं, कोई भी नहीं, ना पास ना दूर। एक प्यार है जो जिए जाते हैं, जिंदगी है जो जिए जाते हैं, खून के होंठ पिए जाते हैं, जिंदगी है जो जिए जाते हैं। Yeah. Wow, amazing. Round of applause to you. One more. Thank you so much. Thank you so My much. personal request. You have played one song, Char Dino Ka, Yaad Aur Rabba, Lambi Judaai, Lambi Judaai. Can you please play that song for me? Yeah, I sure. really love when you played it. It was amazing to hear. Okay. Yeah, sure. चार दिनों दा प्यारो रब्बा, लंबी जुदाई, लंबी जुदाई। चार दिनों दा प्यारो रब्बा, लंबी जुदाई, लंबी जुदाई। तेरे बिन तू मेरा आगे कहीं ना, तेरे बिन जा मेरे जाए कहीं ना। कितने जमाने बाद रब्बा, याद आया, याद तू आया। चार दिनों दा प्यार रब्बा, लंबी जुदाई, लंबी जुदाई। Wow, amazing, Arif. It was bravo to hear. You know, ये गाना जब मैंने Thank you हमारी so टीम में much. सुनाया था,
It's one of my favorite songs for the all times. But then, as I mentioned, मैं music से बहुत दूर हूँ. But then when you sang that song, it really refreshed my old memories. So I said, definitely, I will ask you to play for that. Amazing, Akib. It was a bravo time to have you on this platform with amazing voice and amazing music. And I Thank you so hope much. my viewers would love this episode as much as I'm doing. We will take a short break right now and we'll be moving our segment number 3, followed by the segment number 4. As you're aware, segment number 3 is a rapid fire, and I'm so excited to play rapid fire with Arkib. Let's see how he will answer all the questions. Stay tuned with us. Don't go anywhere. We'll be back after a short break only on Chat with Khwahish, Your Wish, sponsored by New the Distillery. Segment number 2. Let's see how he is placed with the rapid fire. Segment number 3. So, Arkib, are you excited for the rapid fire? Yeah. So, Okay. The first question is, which is your favorite music? which is my favorite music? The grunge. Who is your favorite singer? Who's my favorite singer? Nusrat Fateh Ali Khan. If you got a chance to Sir. give an advice to anyone, so what will be your advice? आपका क्या advice होगा उनके लिए? किसी के मत सुने, अपने दिल की सुने सिर्फ. अगर आपको मौका मिला कोई भी सिंगर के साथ काम करने के लिए, तो आप किसके साथ काम करना चाहोगे? A.R. रहमान साहब. Wow, amazing! He's a great musician. I love his music. No doubt. No doubt. As a part of singing and music, आपको और कोई hidden talent है? Yeah. I dance. Wow, that's great to know. Yeah. Yeah. अगर आपको मौका मिला कोई भी गाना को रीमेक करने के लिए बॉलीवुड का, तो कौन सा गाना होगा? बॉलीवुड का. हाँ जी. बॉलीवुड का इतना ना मुझसे तो प्यार बढ़ा. एक Okay. बहुत पुराना. Yeah. What was the one surprise जो आपको मिला बहुत खुश हुए? एक सरप्राइज जो आपको मिला तो जब बहुत खुश. Yeah, that was that incident. जब मुझे पहली बार मुझे भाई जब मैं अपनी चीजें दिखा पाया था, वो भाई से जो गिटार मिला था, that was the achievement for me. Yeah. अगर आपको मौका मिले आपको पास्ट में जाने के लिए, तो आप कहाँ पे जाना बेहतर? Like what do you want to do in your past? अगर आपको मौका मिला कि to go back to your past, कहाँ जाना पसंद करेंगे? काफी ज्यादा प्रैक्टिस और दोस्तों के साथ खेल पाता था एक्चुअली, ऑनेस्टली. या. वाओ, अमेजिंग. अगर आपको मौका मिला तो आपको ट्रैवल करने के लिए कहाँ जाना पसंद करोगे? आई एम सॉरी, क्या? अगर आपको मौका मिला ट्रैवल करने के लिए तो आप कहाँ जाना पसंद करोगे? मैं कहाँ जाना पसंद? ऑब्वियसली दुबई. वाओ, वी होप टू सी यू हियर सून. आपका सबसे फेवरेट मेमोरी क्या है? सबसे फेवरेट मेमोरी मेरी बहुत सारी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सारी हैं. मैं फिर भी यही फेवरेट वाली मेरी यही फेवरेट मेमोरी है जो मेरे को हमेशा याद रहती है, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर की कि मैंने भाई को जो सुनाया था और उसके बाद ही वो सो सरप्राइज, या. ओके. ऐसा कोई सरप्राइज चीज है, ऐसा कुछ बातें हैं जो आपके बारे में आपके लोगों को नहीं पता? समथिंग अमेजिंग. अमेजिंग. हाँ, ऐसा कुछ है? ऐसा, या, आई बिलीव इट. वो या. आपको किस चीज से ज्यादा तंग आ जाते हो? लाइक व्हाट अनोय यू सो मच? श्योर. ओके. आपका सबसे फेवरेट वर्ड, एक हर्फ कौन सा है? अल्फाज. फेवरेट वर्ड पुकार. आपका ख्वाहिश, आपका सपना क्या था बचपन से? क्या बनना था आपको बचपन में? सिंगर बनना था मुझे हमेशा से, बचपन से. आपके लिए कामयाबी, आपके लिए क्या है कामयाबी पाना? मतलब व्हाट इज मीन टू यू सक्सेस? सक्सेस
अपने फैमिली को, सबको एक खुशी देना, लाइक कि जो वो चाहें उन सबके सपने पूरे करना एक्चुअली, और जो वो मांगे या जो भी चाहे उन सबको दे देना, और अपने आप को खुशी एक्चुअली महसूस करवा पाना, दूसरों के लिए कुछ अगर भला आप करना, आप इस लायक होना। या अगर आपको बताया जाए कि आरएफ को 3 वर्ड में डिफाइन करो, 3 वर्ड में आपको डिस्क्राइब करने के लिए, सो व्हाट वुड बी 3 वर्ड्स? फॉर मी, या क्रेजी, पैशनेट, ओके ओके, एंड इट्स रैपिड फायर। ओके, क्रेजी, अगेन क्रेजी। ओके, आप सबसे पहले सुबह को क्या करते हो when you open your eyes? When I open my eyes, सबसे पहले मैं पहला कलमा पढ़ता हूँ। Well said. हम्म, अगर आप समझ लो कि आपको सक्सेस मिल गया, तो वो सक्सेस के साथ आप क्या एक अच्छा काम करना चाहोगे? अम्मी पापा को हज पहले करवाना है मुझे खुद से, Wow, बिलीव मी, amazing. जो कि मेरा बचपन से था। या बिलीव मी। Inshallah. That's our rapid fire, and you answered, yeah, not so fast, but not so slow. Average it was. It was amazing to know your rapid fire. And our last segment is the main concept of our show, Arcade. I swear down to end this episode, but what to do? It's all about time duration. So, अगर हम आपको बताएं कि हमारा शो का मेन मकसद है आपका ख्वाहिश जानना, what is your ख्वाहिश जो आप चाहते हो कि जल्द से जल्द पूरा हो जाए, and इंशाल्लाह वो जल्द से जल्द पूरा भी हो। What is your ख्वाहिश? मेरी ख्वाहिश एक्चुअली यही है कि मैं गा सकूं, दुनिया को जल्दी से अपने गाने ला सकूं, जल्दी से बैक टू बैक। सबसे बड़ी मेरी अभी जो हाल फिलहाल की है, क्योंकि ख्वाहिशें बढ़ती रहती हैं, अभी की मेरी जो ख्वाहिश है वो यही है। Yeah. या I hope your wishes and your ख्वाहिश comes true. You get it time and your dream to work with A.R. Rahman gets success. And also we wish you that Nusrat Fateh Ali Khan hope to connect you soon, and we pray that you give your success and your mom and dad goes for Hajj, inshallah. वो हमारे उम्मीद and दुआएं हैं। Thank you so much, Arkin. It was amazing time to have you on my platform. Last but not the least, कुछ कहना चाहती हो हमें और हमारे viewers को? यस, मैं जरूर कहना चाहूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं ये जितना भी आपसे बात हुई है, पहले तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपसे बात कर सकूं, आपके इस चैनल पे आ सकूं। और ये मेरा फर्स्ट टाइम है, बिलीव मी, बट मुझे कुछ ऐसा एहसास नहीं हुआ कि मेरा पहली मर्तबा है। आप बहुत अच्छे लोग हैं, पूरी टीम आपकी बहुत अच्छे, सब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे लोग हैं। एंड थैंक यू मुझे इतना इतने प्यार से, मोहब्बत से यहाँ पे बुलाने के लिए। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इस चीज के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। Anything to our viewers जो आपको ये एपिसोड देखेंगे? एंड सबसे मैं यही कहना चाहूंगा कि प्लीज अपने दिल की सुने और किसी की ना सुने बेफिजुल में, और बस करते जाएं। Thank you so much, Arkin. Amazing words from you, and that's what all we wanted: your praise, your love, and we hope you shine like a star. And we will buy your CD soon, and we will listen your music on Hangama and all the music. Thank you so much to watch us today's episode, and it was amazing to have Arkin on our show. The way he was inspiring, the way he has taught me so many things about religion, I was astonished. In the middle of the segment, really, I got goosebumps and I was like, wow, amazing. The way he played the song, especially Char Dino Ka Baat Hai Rabba, the one of the favorite song of mine, he made my old memories come true. This is just a way to connect, and that's what I always say: keep connecting people all around. Everyone has a story to tell. His story is not only been amazing but also inspiring. We hope all his khwaish just get fulfilled,
and we listen him all his music as soon as possible. And I wish his parents go for Hajj, and this is what we always wish for. It's all about your khwahish, your wish on this platform. Make sure if you have any story to tell, as I always mention in all the episode, drop us, connect to us. Let's inspire me and the youth who is connecting to you. As I always say in all the episode, please, for God's sake, do wear mask, do sanitize whenever required, maintain social distancing, stop baba gathering because it's increasing a lot. And I hope with this all, we will end this pandemic situation. With that note, I'm just signing out Muhammad from today's episode. Chat with Khwahish Yawish, sponsored by Noor, the Destiny of Hope. Jazakallah khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.